ठीक है. So in the क्या किया था last class में? What we have completed? Have you done the traversing in order, post order? Yeah. Now let's see the program. Okay. Let's see the program for that traversing. Suppose if you want to do traversing, obviously first you have to create that binary tree. Suppose I'm using the linked list representation to create the binary tree. So obviously I will define a structure like this. We are seeing the implementation of that traversing. Okay, so code kya hai and time complexity, everything we'll talk about implementation. So first you have to create that sorry, binary tree. So I'll use obviously structure if I'm using linked list representation. So struct node. Suppose the first part of that binary tree is data, which is a character data, BCD. So char data, and I will have two pointers here, right? One pointer will point to the left child of that node, and the another pointer will point to the right child of that node. So struct node star, one pointer I will have left, another pointer I will have right, like this. Something like this I will define the structure. Okay, suppose my tree looks something like this. Okay, I have node A, then this is my this is the left pointer of A, this is the right pointer of A. The left pointer points to another location, that is B. Okay, the right child points to another location, that is C. फिर B का left child will be suppose D, and B का right child is suppose E. C का left child is suppose F and G. So here comes F, here comes G. Let's give some memory addresses. Suppose A is on 100, B is on 200, C is on 300, then 400, 500, 600 and 700. Okay, so obviously यहाँ पे क्या आएगा in the A of left, struct node star जो left है, A के left में क्या आएगा 200, because this is pointing to memory location 200. A के right में क्या आएगा 300, yes or no? B के left में क्या आएगा 400, B के right में क्या आएगा 500, C के left में 600, C के right में 700. यहाँ क्या आएगा D के left में, what will come here? Null. There is no change for D, so null, 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 null. यहाँ पे भी null, यहाँ पे भी null. चलो ट्री बन गया. Now I want to write the code for the pre-order, in-order and post-order traversal. एक का example देखते हैं पहले. Suppose I am writing the program for in-order traversals. Okay, so in-order traversal के लिए I have to write the program. The program doesn't return me any integer, character, float, anything. So the return type is void, and I will create one pointer struct node star, suppose T, temporary pointer, and T will start pointing from this memory location. Root node से start करेगा T point करना. Now what is the basics of in order? In order बोलता है that first you have to go left, then you have to print the root node and then the right child. Yes or no? Root is in between, in order है ना, in root between होगा, root बीच में होगा. Same algorithm, same logic we are going to apply here also. What we are going to do is we will check कि जब तक t null नहीं है, जब तक t null नहीं है, we will keep on moving t left. If you remember जो shortcut technique बताई उसमें क्या करना है, in order जब second time नोट देखते तब print करना था, right? Pre order पहली बार में, in order second time, post order third time. So if you see that same common logic, what we have to do is when you see a node second time you have to print that in order में. So जब तक t null नहीं है, we will keep on moving left. ऐसे left आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, और जब t null, जब null मिल जाएगा वापस उस पॉइंटर को जब फिर से देखेंगे. इसको लेट्स कंप्लीट इट. d में भी ऐसा करो, नहीं छोड़ो, इससे भी काम चल जाएगा. So again, let's write the basic code first. So I'm going to use the recursive program. Okay, it's such a beautiful code in 3 lines. This whole in order traversing will be finished. Let's see how. So again, I will call the in order function. First, you have to call the left one. So in order t का left I will call,
then I will printf, this is a character, so percentile c t का डेटा, आई हैव टू प्रिंट द रूट नोड ना, पहले लेफ्ट आगे फिर रूट नोड प्रिंट करना है, सो आई विल प्रिंट एफ टी का डेटा, बिकॉज इफ यू सी इन माय स्ट्रक्चर टी का डेटा इज द रूट नोड, सो टी का डेटा आई विल बी प्रिंटिंग, देन आई विल अगेन कॉल द रिकर्सिव फंक्शन विथ टी का राइट, दैट्स इट, द प्रोग्राम इज ओवर, यही है इन ऑर्डर का प्रोग्राम. नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ठीक है, इसको ट्रेस करते हैं, लेट्स जस्ट ड्राई रन दिस, लेट्स नंबर द कोड, सपोज दिस इज 1, this is 2, this is 3. अब ये इन ऑर्डर का प्रोग्राम है. सपोज यू वांट टू राइट द प्रोग्राम फॉर प्री ऑर्डर, तो क्या होगा, 2 1 3 will be the sequence, 2 1 3, that will be your sequence for pre order. Suppose you want to write the post order traversal, same program, the sequence will be 1 3 2. Yes or no? You're getting it what I'm saying? Now till this point it must be fine with, it should be fine with everyone. इसके बाद whatever I'm going to tell you, even if you understand 20-30% of that, it will be perfectly fine. इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. I am saying Karthik that first left, then root, then right. This is the sequence for in order. Suppose the same program you want to write for pre-order. Pre-order में क्या होता है, पहले root आता है ना, pre, तो मतलब पहले 2 वाला स्टेप आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा. You will just shuffle down these steps. पोस्ट ऑर्डर लिखना है तो पहले लेफ्ट, फिर राइट, मतलब 1 और 3, और लास्ट में 2 आएगा, 1 3 2. दिस विल बी द सीक्वेंस. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. Okay, now from this point onwards, whatever I'm going to discuss, this is just for your better understanding, which will help you in your future classes, how things works. Okay, 20-30% भी समझ आएगा, perfectly fine. Just watch the recording again later. Now you tell me first one thing. I have written a recursive program, so background में which data structure will be there to help me solve this? Stack. Very good. So in background I will be having stack, because stack is the only data structure that helps us solve recursive program. So एक stack होगा जिसकी मदद से we will trace back, हाँ कैसे काम कर रहा है in order, we will trace back. Suppose कोई main function होगा, in that main function I have called this in order traversal. मैंने main में इस in order traversal को call किया. So this in order traversal is called, what will be the value of t initially? t की क्या value पास होगी? 100, because I am starting from root node, so t equals to 100 पे मैं start करूंगा. We will come inside this function, we will check the condition, क्या t null है? अगर t null होगा तो कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं करना है, we will return. t null नहीं है तो ये तीनों स्टेप परफॉर्म करने हैं. क्या t null है? नहीं है. t 100 है. तो अगर t null नहीं है, if t is not null, now listen carefully, if t is not null, I am again calling that in order function with t का left. So this function will again call another in order function with t का left. तो इस वक्त t की वैल्यू क्या होगी, अब तो दोबारा ये कॉल होगा, यहां से वापस जाएंगे, अगेन वी विल कॉल, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ t का लेफ्ट? इस वक्त t का लेफ्ट क्या है, 200, मतलब 200 पे फिर से फंक्शन कॉल होगा. एंड सी वन थिंग, कीप इन माइंड, इन रिकर्सिव प्रोग्राम्स ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, जब फॉर t इक्वल्स टू 100 वी हैव एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट लाइन, बट ये दोनों लाइन अभी बची हुई है फॉर t इक्वल्स टू 100, राइट. फॉर t इक्वल्स टू 100 आई हैव एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट लाइन कि t का 2 t इक्वल्स टू 200 पे मैंने फिर से आई हैव कॉल्ड दैट सेम फंक्शन, बट ये दोनों लाइन अभी बची हुई है. सो यू रिमेंबर हियर दैट जब मैं वापस यहाँ पे आऊंगा, आई हैव टू एग्जीक्यूट द लाइन नंबर 2, उसके बाद लाइन नंबर 3, बिकॉज सारी लाइंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए ना फॉर एवरी फंक्शन. एंड दिस इज अ कॉमन पैटर्न फॉर एवरी रिकर्सिव प्रोग्राम. हर रिकर्सिव प्रोग्राम में all the lines have to be executed. So for t equals to 100, first line I have executed, I have called this in order function again, t equals to 200. But जब वापस आएंगे इसके ऊपर, we will I am remembering that I have to perform this step number 2. So what has happened is from t equals to 100 I have moved to the left. अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ t equals to 200 पे. Again the condition will be checked. क्या t null है? t null नहीं है. So again this t equals to 200 will call another in order function with t equals to what? फिर से t का लेफ्ट, फिर से कॉल करेगा ना t का लेफ्ट, राइट, मतलब t इक्वल्स टू 400, ये फिर से कॉल करेगा. एंड यू रिमेंबर हियर कि जब भी वापस यहाँ पे आएंगे आई हैव टू परफॉर्म द सेकंड स्टेप.
So what has happened? From t equals to 200, I have moved to t equals to 400. अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं लेफ्ट में जाता जा रहा हूँ. I'm keep on moving. Keep on moving left and left and left. अब थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस बना लो so that it will be helpful. Now t equals to 400. Again the condition will be checked. T is not null. Still t is not null. Again in order function will be called. And I am remembering that I have to perform this step 2. अब t की वैल्यू क्या होगी? At t equals to 400, when again t का left will be called. What is t का left? T का left is now null, right? T का left is now null. So when t का left is null, nothing will be performed. I will return. I will pop. Return का मतलब होता है stack में I will pop this thing. I will pop it. मैं वापस आ जाएगा top of the stack t equals to 400. मतलब क्या हुआ? मैं यहां तक पहुंचा 400 तक. मैंने देखा t का लेफ्ट नल है तो मैं वापस ऐसे घूम के यहाँ d पे आ गया. Now you see, I am at t equals to 400. मतलब मैं d पे वापस आ चुका हूँ. Which step I have to perform now? क्या याद कर रखा है मेमोरी में? You have to perform the second step. Second step क्या बोलता है? You have to print the t का डेटा. मतलब the first thing that will be printed is d. And see, as per our shortcut logic also, जो हमने देखा था, जब second time कोई एलिमेंट दिखेगा तब प्रिंट करना है, right? d अब मुझे second time दिख रहा है. Yes or no? That is why this is also printed. Fine. So second step भी हो गया. Now after the second step, for t equals to 400, for t equals to 400, I perform the first step, I perform the second step. Now I have to perform the third step for t equals to 400. What is the third step? फिर से इन ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा आपकी t of right से. What is t of right at this point? Null. फिर से null. मतलब यहां से घूम के मैं d में वापस यहां आ गया. आई एम सीइंग d फॉर द थर्ड टाइम. तो जब भी नल दिखेगा यू हैव टू रिटर्न इट. यू हैव टू रिटर्न करके वापस d पे आ गए. रिटर्न करके वापस d पे आ चुके हैं. d के लिए सारे स्टेप्स पूरे हो गए. ऑल द 3 स्टेप्स आर कंप्लीटेड फॉर t इक्वल्स टू 400. तीनों कर लिए ना. मेमोरी ने कुछ भी याद नहीं कर रखा है. सो दिस विल आल्सो बी रिटर्न. इसका काम भी खत्म हो जाएगा. वी विल पॉप दिस ऑफ फ्रॉम द स्टैक. वी विल again everyone, okay, even if you get 20-30%, whatever, it's perfectly fine. Do not panic in this thing. Okay, this is not a thing which I generally teach to first year students, but since we were completing the topic, so I am completing it. Okay, final year उसके बाद वाले बच्चे का syllabus का part है. So don't worry, just be patient. Okay, so what has happened is 400 pop हो गया. मतलब D से वापस हम लोग आ गए B की तरफ. देखो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? T को 200 है ना. मतलब हम लोग वापस घूम के आ गए B पे. मेमोरी में क्या याद कर रखा है? नाउ व्हाट वी हैव टू डू? व्हिच स्टेप? सेकंड स्टेप याद कर रखा है ना. यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है? टी का डेटा प्रिंट करना है. मतलब बी विल बी प्रिंटेड बिकॉज टी का डेटा इज बी एट दिस पॉइंट. सो सेकंड स्टेप भी हो गया. राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू परफॉर्म द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप बोलता है फिर से इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करो. व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टी एट दिस पॉइंट? एट दिस पॉइंट व्हाट इज टी का राइट? 500. वेरी गुड. टी का राइट इज 500. मतलब अब देखो क्या हो रहा है लॉजिकली. नाउ आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन. अब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं. मैंने बी देख लिया. अब मैं ऐसे जा रहा हूं ई की तरफ. आई हैव रीच्ड ई. राइट. सो फिर से टी नल नहीं है. जब टी नल नहीं है, व्हेन टी इज नॉट नल, आई हैव टू अगेन कॉल द इन ऑर्डर फंक्शन. और यहां पे याद रखेंगे कि सेकंड स्टेप करना है. आई विल अगेन कॉल द इन ऑर्डर फंक्शन विथ टी का लेफ्ट. व्हाट इज टी का लेफ्ट एट दिस पॉइंट? नल. तो नल रिटर्न हो जाएगा. मतलब दिस थिंग विल बी रिटर्न. आई विल पॉप इट ऑफ फ्रॉम दिस स्टैक. और फिर से टॉप ऑफ द स्टैक अब हो गया 500. मुझे याद था सेकंड स्टेप करना है मुझे. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? आई हैव टू प्रिंट दैट डेटा. मतलब ई प्रिंट हो जाएगा. ई विल बी प्रिंटेड. सो सेकंड स्टेप भी हो गया. नाउ आई एम स्टिल एट ई एंड आई हैव टू परफॉर्म द थर्ड स्टेप. आई हैव टू परफॉर्म द थर्ड स्टेप दैट इज इन ऑर्डर ऑफ टी का राइट. व्हाट इज टी का राइट? नल. फिर से वो भी रिटर्न हो जाएगा. मतलब यहां से हम लोगों ने वापस ई को देख लिया थर्ड टाइम. वो भी रिटर्न हो गया. सारे स्टेप हो गए. 40 इक्वल्स टू 500. 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया. वी विल पॉप इट ऑफ फ्रॉम द स्टैक. इसको भी रिटर्न कर देंगे यहां से. वी विल पॉप इट ऑफ फ्रॉम द स्टैक. मतलब क्या हुआ? वापस ई से हम लोग ऊपर चले गए बी की तरफ. देखो फिर से टॉप ऑफ द स्टैक टी इक्वल्स टू 200 है ना. मतलब बी पे आ गए वापस.
मेमोरी में कुछ भी याद नहीं है, बिकॉज फॉर बी वी हैव इवैल्यूएटेड 1 2 एंड 3 ऑल द स्टेप्स। सो ये भी स्टैक से पॉप हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है बी के लिए भी, मतलब बी से हम लोग ऊपर चले गए वापस ए की तरफ। दिख ही रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक इज टी इक्वल्स टू 100, टी इक्वल्स टू 100 मतलब वापस ए पे चले गए, विच इज द स्टेप दैट वी हैव टू परफॉर्म, सेकंड स्टेप, मतलब ए प्रिंट हो जाएगा, राइट एवरीवन, ए विल बी प्रिंटेड। सो सेकंड स्टेप इज डन। नाउ यू हैव टू परफॉर्म द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, यू हैव टू कॉल द इन ऑर्डर फंक्शन विद टी का राइट। सो इन ऑर्डर टी का राइट, व्हाट इज टी का राइट एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट टी का राइट क्या है, 300 है, मतलब आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, नाउ आई एम मूविंग लाइक दिस, टी का राइट इज 300, 300 पे आ गए, फिर से कंडीशन चेक होगी, टी इज नॉट नल। सो यहाँ पे याद रखेंगे कि सेकंड स्टेप करना है, और फिर दिस 300 विल कॉल इन ऑर्डर ऑफ 600, राइट। नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द इंट्यूशन। अब ये कॉल करेगा 600, 600 से यहाँ पे आएंगे, फिर देखेंगे टी नल हो गया, मतलब वापस एफ पे आए, फिर सेकंड स्टेप याद रहेगा तो एफ प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस एफ का राइट कॉल करेंगे, नल हो जाएगा, मतलब वापस एफ पे आगे कुछ नहीं करना, सब रिटर्न, एफ के तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, वापस घूम के जाएंगे सी पे। ओके, सी पे सेकंड स्टेप रहा होगा कि सेकंड स्टेप करना है, तो सेकंड प्रिंट हो जाएगा, फिर सी का राइट जाएंगे इस तरफ, फिर ये सारा काम करेंगे, जब प्रिंट करेंगे वापस सी पे आएंगे, फाइनली कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब घूम फिर के सब कुछ स्टैक से पॉप हो जाएगा, यू विल अगेन कम बैक टू ए लाइक दिस, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक 100 पड़ा रहेगा, कुछ भी मेमोरी में याद नहीं था, सो दिस विल आल्सो बी पॉप्ड ऑफ, एंड दिस इज हाउ द इन ऑर्डर ट्रावर्सल वर्क्स। गॉट द इंट्यूशन? See, such a beautiful program, such a beautiful technique recursion is. With the help of this three codes or three lines of code only, you have written the whole in order traversal. बस इसी में थोड़ा सा लाइंस ऊपर नीचे करोगे, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर भी हो जाएगा। हाँ मनीषा। Yes, sir, I got the technique that what is it is, but I want to ask that when t is equals to null, तो जब if की condition check होगी, तो वो तो null है, तो फिर वो आएगा ही नहीं ना loop के, loop हाँ condition लूप तो के null हो अंदर गई। जैसे टी नल होगा हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली, लूप के अंदर नहीं आएंगे। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट केस में जब हम लोग t इक्वल्स टू 100, यहाँ पे होगा t इक्वल्स टू 200, 200 कॉल करेगा t इक्वल्स टू 400, राइट। स्टार्टिंग से देखते हैं, ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप याद करना है, ये सेकंड स्टेप याद करना है। सो व्हेन t इक्वल्स टू 400, जब t इक्वल्स टू 400 है, एक बार एग्जीक्यूट होगा ना मनीषा, Yes, sir. मतलब फिर से अंदर आएंगे, इन ऑर्डर कॉल होगा, फिर से इन ऑर्डर कॉल होगा, अब t की वैल्यू होगी नल, राइट, है ना मनीषा? सर आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है एक्चुअली। आई एम सेइंग t equals to 400 will again call this in order function. So let me refresh once, wait. Now fine. Okay, so I was saying that when t equals to 400 है, फिर से कंडीशन चेक हो गई वंशा, t नल नहीं है, अगेन विल कम इनसाइड, फिर से कॉल होगा इन ऑर्डर ऑफ t का लेफ्ट, व्हाट इज t का लेफ्ट एट दिस पॉइंट, जब t 400 है, t का लेफ्ट इज नल, राइट, तो t का Yes. t इक्वल्स टू नल पे इन ऑर्डर फिर से कॉल होगा, बट यहाँ पे पास होगा ना इन ऑर्डर, यहाँ पे t नल यहाँ पे पास होगा, कंडीशन इज फॉल्स, ये तीनों ही लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये तीनों ही लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यू विल नॉट कम इनसाइड, और यू विल डायरेक्टली रिटर्न, यहां से यू विल डायरेक्टली रिटर्न, यही तो मैं बोल रहा हूँ, रिटर्न करके वापस आ जाएंगे पीछे 400 पे, और थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे, मतलब सेकंड स्टेप परफॉर्म करेंगे, डेटा प्रिंट करेंगे, फिर थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे, टी का राइट फिर नल होगा, मतलब फिर वापस आ गए, मतलब ब्रांच ट्री में ऐसे घूम रहे हम लोग, 400 पे आए, वी रीच्ड 400, ठीक है, फिर टी का लेफ्ट देखा, नल था, वापस आगे घूम के डेटा प्रिंट किया, फिर टी का राइट देखा, नल था, वापस आगे घूम के एंड ऊपर चले गए, जब सारा काम खत्म हो गया, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, क्लियर? Yes, sir, clear. एनी डाउट्स एनीवन?
Any doubts? Tell me the time complexity for this program. What is the worst case time it will take? Think. What could be the worst case time? टाइम कितना लगेगा ये काम करने में? टू राइट एनी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल्स? Not in your syllabus. No one is going to ask you. Okay, just for the completion, I'm telling you. See, first tell me how many nodes you have. You have n nodes. Perfect. नहीं, Karthik. In computer science, whenever someone asks you what is the time complexity, we are talking about worst case time complexity. ठीक है, बेस्ट केस तो हर चीज का ऑर्डर ऑफ वन होता है, तुरंत ही हो गया काम. Okay? Whenever someone asks you what is the time complexity, that person means big O. ये पढ़ा है ना big O? In your first module that there was a synchronous lecture, right? So big O का मतलब होता है worst case time complexity. इस प्रोग्राम को करने में सबसे बुरा से बुरा वक्त क्या लगेगा? What is the worst case to solve this problem? Log 2n plus 1 square. नहीं, log कैसे आया मनुष्य? See, you have n nodes. First you tell me maximum how many times you are visiting a node. Worst case में एक नोड को कितनी बार विजिट कर रहे हो? मैक्सिमम 3 बार कर रहे हो ना? 3 times. You have n nodes. You are visiting every node 3 times. हर बार उस नोड पे आप कितना वक्त स्पेंड कर रहे हो? हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन एवरी नोड? दैट इज अ कांस्टेंट टाइम. दैट इज अ कांस्टेंट टाइम. हो सकता है 1 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम, 10 यूनिट ऑफ टाइम्स. मतलब तुरंत ही काम कर रहे हैं ना. वी आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम. वी आर स्पेंडिंग जस्ट अ कांस्टेंट टाइम. या तो उसे प्रिंट कर रहे हैं या तो उसका लेफ्ट या राइट वैल्यू रख के आगे बढ़ जा रहे हैं, राइट? वी आर डूइंग दैट. So you have n number of nodes. Every node you are visiting 3 times, and every time you are spending a constant amount of time there. So this is your worst case time complexity, in which 3 and c are constant. This computer science में कभी भी constant count नहीं करते time complexity में. So this is nothing but order of n simply. Got it? कोई पूछने नहीं वाला है, just for your understanding. ठीक है? Now, a very interesting topic we are going to discuss, that is construction of binary trees using traversal. Suppose मैं आपको traversal दे दूं, pre order and post order, and I ask you to create the binary tree. किसी same binary tree का pre order post order दे दिया, in order post order दे दिया, right? Post order in order दे दिया, any combination of two, and I ask you to create the binary tree seeing that orders. Okay, so construction of binary trees using or from given traversals. Okay, so either you could be given pre and in order traversal, या फिर प्री एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, या फिर पोस्ट एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल. एक एक करके सारा देखेंगे. सपोज इन द फर्स्ट केस आई गिव यू प्री एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल. एग्जांपल लेते हैं. सपोज किसी एक ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल गिवन है 1 2 4 3 5 7 8 6. This is the pre-order traversal of a tree. साथ ही साथ एक in order traversal भी given है, that is 4 2 1 7 5 say 8 3 6. Now with the help of this pre-order and in-order traversal you have to draw that binary tree. अब कैसे करेंगे? उससे पहले some basics. Suppose this is a tree ABC. इसका pre-order traversal लिखते हैं. The pre-order traversal is root will be first, then left child, then right child. What is the in-order traversal? Root will be in between left child and right child, right? Now, if you see pre-order को देखो, pre-order में the first node is always going to be the root node of the tree. Can I say this?
किसी भी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल देखो, बिकॉज रिमेंबर दैट लॉजिक, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में जब भी नोड पहली बार दिखता है, व्हेनेवर यू सी द नोड फर्स्ट टाइम यू प्रिंट इट, ऑब्वियसली द फर्स्ट नोड जो दिखेगा वो रूट नोड ही होगा ट्री का। सो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में जो पहला नोड होगा वो हमेशा रूट नोड होगा उस ट्री का, राइट। नाउ उस रूट नोड को इन ऑर्डर ट्रावर्सल में देखो, पता चल गया रूट नोड ए है। अब उस ए को यू सी इन द इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर में ए के लेफ्ट में जितना पार्ट होगा वो ए का लेफ्ट सब ट्री होगा, वट एवर इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ए दैट विल बी द राइट सब ट्री ऑफ ए। यूजिंग दैट सेम लॉजिक आई वांट टू क्रिएट द ट्री फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व दिस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रूट नोड ऑफ दिस ट्री यूजिंग प्री एंड इन? वन। गुड, राइट। प्री ऑर्डर में जो पहला नोड होगा वही रूट नोड होगा ट्री का। सो वन इज द रूट नोड ऑफ द ट्री। अब वन को देखो इन ऑर्डर में वन कहां आ रहा है, वन इज कमिंग हियर, वन इज कमिंग हियर। वन के लेफ्ट में जो भी है वो उसका लेफ्ट पार्ट होगा, दैट इज 4,2। वन के राइट में जो भी है दैट विल बी द राइट पार्ट ऑफ और राइट सब ट्री ऑफ वन, 7 5 8 3 6 लाइक दिस। नाउ इन 4 एंड 2 अब एक एक करके सॉल्व करेंगे फिर से। 4 एंड 2 में मुझे फिर से एक रूट चाहिए। 4 एंड 2 में रूट क्या होगा, फिर से प्री ऑर्डर के पास जाओ। 4 एंड 2 में जो पहले आ रहा है वो रूट होगा ना, व्हाटएवर इज कमिंग फर्स्ट 4 नहीं होगा कार्तिक। प्री ऑर्डर में जो पहले होता है वो रूट होता है ना हमेशा, किसी भी, अगर इसको डिटेल में भी जाओ, अगर बी से नीचे डी और ई भी जाओ तो पहले बी आएगा फिर डी आएगा, राइट। तो जो पहले आ रहा है वो हमेशा रूट नोड ही होगा। सो 4 एंड 2 में देख लो प्री ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है एवरीवन। सो 2 विल बी माई रूट नोड। अब उस 2 को इन ऑर्डर में देखो 2 कहां आ रहा है, उसके लेफ्ट में जो है वो उसका लेफ्ट पार्ट होगा। वैसे देखने की जरूरत नहीं, यहां से भी पता चल जाता है कि 2 के लेफ्ट में 4 आ रहा है तो 2 का लेफ्ट चाइल्ड होगा 4, सिंपली लाइक दिस। अगर यहाँ पे 2 के राइट में कुछ लिखा होता 3 6 तो वो 2 का राइट चाइल्ड में आता। सी दिस 7 5 8 3 6 amongst these 5 nodes I want the root node। रूट नोड क्या होगा, प्री ऑर्डर में देखो पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है इन सब में, 3 3 is coming first, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है ना करण, मानो 3 आ रहा है ना। सो 3 विल बी माई रूट नोड। अब चाहो तो इन ऑर्डर में देख सकते हो 3 कहां आ रहा है, उसके लेफ्ट में क्या उसके राइट में क्या, बट यहां से भी पता चल रहा है कि 3 के लेफ्ट में है 7 5 8 एंड 3 के राइट में है 6। यहीं से पता चल जाता है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती इन ऑर्डर में। 3 के लेफ्ट में है 7 5 8, 3 के राइट में है 6 6 was a single node तो वो खत्म हो गया, वहां कुछ और नहीं करना है। 7 5 8 what is the root node in 7 5 8? प्री ऑर्डर में फिर से देखो पहले क्या आ रहा है, 5 पहले आ रहा है, सो 5 विल बी द रूट नोड। यहीं से दिख रहा है कि 5 के लेफ्ट में है 7, 5 के राइट में है 8, द ट्री इज completed। okay, so this is the binary tree from the given pre-order and in order 1 2 3। 2 का लेफ्ट चाइल्ड इज 4, 3 का लेफ्ट चाइल्ड इज 5, 3 का राइट चाइल्ड इज 3 6, 5 का लेफ्ट चाइल्ड इज 7, 5 का राइट चाइल्ड इज 8। दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द ट्री। प्री ऑर्डर में देखो रूट क्या है एंड दैट्स इट। एनी डाउट्स? ठीक है, अब इसका इफ यू वांट टू राइट द एल्गोरिथम, simply you can write 3 steps। first one is you have to identify the root node from pre-order। pre-order को देख के सबसे पहले root node का पता करिए। second step is identify the left and right subtree using in order। अब जो रूट नोड आया उसको देखो इन ऑर्डर में वो कहां आ रहा है, 1 यहां आता था, 1 के लेफ्ट में जो भी है वो उसका लेफ्ट सब ट्री, 1 के राइट में जो भी है वो उसका राइट सब ट्री। थर्ड, you keep on repeating the above 2 steps till you get the whole tree, that's it, fine। now let's see the next case। I give you post order and in order। I give you post order and in order traversals, and with the help of that you have to draw that tree। again let's take one example। suppose post order traversal is say 8 4 5 2 6 7 3 1।
and in order traversal, let's take 4, 8, 2, 5, 1, 6, 3, 7. This is the in order traversal. Now मैं कुछ नहीं बता रहा अभी. Can you tell me what is the root node? 1 होगा. अगर नहीं मंशा, सी प्री ऑर्डर में जो पहला नोड होता है वो रूट नोड होता है, और पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड सबसे लास्ट में होता है, राइट? पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड इज एट द एक्सट्रीम लास्ट. सो प्री ऑर्डर में जब पहला नोड देख के रूट नोड पता चल रहा था, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में होगा, दैट विल बी योर रूट नोड. मतलब अभी हम लोग यहां से देख रहे थे पहले कौन सा आ रहा है वो रूट नोड हो रहा था, अब यहां से देखेंगे इन दिस डायरेक्शन व्हाटएवर इज कमिंग फर्स्ट दैट विल बी द रूट नोड. सिंपल. सो द रूट नोड इज 1. अब उस 1 को देखो इन ऑर्डर में कहां आ रहा है. 1 इज कमिंग हियर, तो 1 के लेफ्ट में जो भी है दैट विल बी द लेफ्ट पार्ट. 4, 8, 2, 5. 1 के राइट में जो भी है दैट विल बी द राइट पार्ट. 6, 3, 7. यस और नो? अब 4, 8, 2, 5 में से रूट नोड कौन सा होगा? जो भी इस तरफ से पहले आ रहा है, वट एवर इज कमिंग फर्स्ट इन दिस डायरेक्शन. 2 आ रहा है किशान, 2 आ रहा है 4, 8, 2, 5 में. 4, 8, 2, 5 में किशान है ना. 4, 8, 2, 5 में 4, 8, 2, 5 में 2 आ रहा है सबसे पहले. सो 2 इज योर रूट नोड. अब बाकी और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती. आफ्टर फर्स्ट स्टेप यू कैन सिंपली सी फ्रॉम हियर इटसेल्फ. लेफ्ट में है 4 और 8, राइट में है 5. 5 इज द सिंगल नोड, तो काम खत्म. 4 और 8 की बात करते हैं. विच इज द रूट नोड अमंग 4 एंड 8? 4 पहले आ रहा है. 4 इज द रूट नोड. 4 का राइट चाइल्ड है 8. कीप दिस थिंग इन माइंड. 4 का राइट चाइल्ड है ए, क्योंकि एरोस का फर्क पड़ता है इन विच डायरेक्शन यू आर ड्रॉइंग द ब्रांचेस. यहीं से पता चल रहा है 4 के राइट में ए है. 6, 3, 7 विच इज द रूट नोड? 3. 3 का यहीं से दिख रहा है लेफ्ट चाइल्ड इज 6, यहीं से दिख रहा है राइट चाइल्ड इज 7. दैट्स इट, बन गया ट्री. Okay, again algorithm you can write. The first step is you have to identify the root node from the post order. Post order को देखो, जो सबसे लास्ट का एलिमेंट है वो है रूट नोड. सेकंड स्टेप, you identify the left subtree and right subtree using in order. And third step is repeat everything. Any doubts? ठीक है. Okay, so दो चीजें खत्म हो गई. The third is, and it's a very special kind of a thing, प्री एंड पोस्ट. जब प्री और पोस्ट एक साथ दिया होता है थोड़ा सा स्पेशल होता है. क्यों होता है अभी देखेंगे. इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे. ओके, जस्ट पे अटेंशन एवरीवन. Now suppose you are given a post and a pre-order traversal of a tree, and with the help of that you have to draw that tree. अब in order नहीं दिया है. in order नहीं दिया है. in order का help क्या हो रहा था अभी तक? जो भी रूट नोड था उसको in order में देख लेते थे कहां पे है. उसका लेफ्ट वाला पार्ट पूरा लेफ्ट सब ट्री था, राइट वाला पार्ट पूरा राइट सब ट्री था. बट नाउ यू डोंट हैव इन ऑर्डर. यू डोंट हैव इन ऑर्डर. तो लेफ्ट और राइट डिसाइड करना है, क्योंकि पोस्ट हो या प्री हो, प्री का पहला वाला रूट नोड होगा, पोस्ट का लास्ट वाला रूट नोड होगा, दोनों सेम ही होंगे, राइट? रूट नोड तो तुरंत पता चल जाएगा. लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा. सो बिफोर दिस, फर्स्ट यू राइट द एल्गोरिथम व्हाट आई एम टेलिंग यू, देन वी विल डिस्कस द एग्जांपल. सो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट नोड फ्रॉम प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर को देख के यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट नोड. सेकेंड स्टेप, you have to identify the left child from pre-order. लेफ्ट सबट्री नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड उस पर्टिकुलर नोड का फ्रॉम प्री ऑर्डर. अभी लिख लो विद एग्जांपल, इट विल बी क्लियर. So first you have to identify the root node from the pre-order. Second step, you have to identify the left child from the pre-order. Third step is you have to identify the left subtree and right subtree from post order. And the fourth step is you keep on repeating everything. You keep on repeating everything. ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, इट विल बी क्लियर. Suppose, let's take one example. Suppose I'm given a pre-order like 1, 2, 4, 8, 9, 5, 3, 6,
7. This is the pre-order. Post order is given like this is 1, right? So post order is something like 8 9 4 8 नहीं 2 बार 8 क्यों लेंगे 8 9 4 3 8 9 4 5 ले लेते हैं let's take it 5 8 9 4 5 2 6 7 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है first you tell me the root node the first step of the algorithm is you have to tell me the root node what is the root node कुछ भी देख सकते हो प्री ऑर्डर देख लो चाहे पोस्ट ऑर्डर देख लो रूट नोड इज 1 राइट प्री ऑर्डर में 1 पहले पोस्ट ऑर्डर में 1 लास्ट में so either you see pre-order or you see post-order the root node comes to be 1 second step of your algorithm says you have to identify the left child अब before this first see here suppose I write a binary tree like this इसका मैं pre-order लिखूं if I write the pre-order so A B C can I say that हमेशा root node के जो pre-order में हमेशा pre-order में whatever element is coming to the right of the root node that will be the left child of that thing इसको डिटेल में भी कर सकते हो सपोज इसको डिटेल में बनाए डी एंड डी इसका प्री ऑर्डर लिखे तो पहले बी आएगा फिर डी और फिर ई सो फॉर द रूट नोड बी कैन आई से द नेक्स्ट इमीडिएट एलिमेंट दैट इज डी दैट इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी है ना लेफ्ट चाइल्ड ही है ना बी का यू आर गेटिंग इट इन प्री ऑर्डर रूट नोड के बगल वाला एलिमेंट उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है सिंपल इन प्री ऑर्डर रूट नोड के बगल वाला एलिमेंट इज द लेफ्ट चाइल्ड बहुत बढ़िया नाउ द सेकंड स्टेप सेज वी हैव टू आइडेंटिफाई द लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड है 1 प्री ऑर्डर में देखो 1 की जस्ट राइट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है सो कैन आई से 2 इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 1 राइट नाउ पहले दो स्टेप खत्म हो गए एल्गोरिथम का नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ योर एल्गोरिथम इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द होल लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री बेसिकली इन ऑर्डर नहीं है ना वरना ये काम तुरंत हो जाता इसलिए माथा बच्ची कर रहे हैं पूरी वी डोंट हैव इन ऑर्डर हियर सो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द रूट नोड देन यू सी इन द प्री ऑर्डर उस रूट नोड के बगल में कौन सा एलिमेंट है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 इज द लेफ्ट चाइल्ड अब उस लेफ्ट चाइल्ड को पोस्ट ऑर्डर में देखो कहां आ रहा है वो लेफ्ट चाइल्ड पोस्ट ऑर्डर में यहां आ रहा है उसके लेफ्ट में जो भी होगा इंक्लूडिंग दैट इट विल बी द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 1 मतलब 8 9 4 5 2 ये सारा का सारा 1 का लेफ्ट होगा और 2 के राइट में जो भी है वो सारा का सारा 1 का राइट सब ट्री होगा मतलब 6 7 3 1 इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 1 पहले ही रूट नोड है सो अगेन लिसन टू ऑल द स्टेप्स फर्स्ट स्टेप यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट नोड देन इन द प्री ट्रावर्सल यू हैव टू सी कि रूट नोड के बगल में कौन सा एलिमेंट आ रहा है जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा वी आर यूजिंग द कॉमन सेंस अगर वो लेफ्ट चाइल्ड है तो उसे देखेंगे पोस्ट ऑर्डर में कहां आ रहा है वो पूरा पार्ट इंक्लूडिंग दैट वो 1 का लेफ्ट पार्ट हो जाएगा और उसके राइट वाला पार्ट पूरा 1 का राइट पार्ट हो जाएगा एनी डाउट्स अब इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूं मैं बट यू विल गेट अ बिट कंफ्यूज सो आई एम गोइंग टू डू इट अ बिट सीक्वेंशियली मींस ये मेरा पोस्ट ऑर्डर है ये भी मेरा पोस्ट ऑर्डर है अब ऐसे देख देख के प्री में कौन सा पहले आ रहा है पोस्ट में पहले आ रहा है कर सकते हैं बट विद टाइम यू विल डू दैट राइट नाउ जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप लेट्स राइट द प्री ऑर्डर फॉर दिस पोस्ट ऑर्डर मतलब पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस ये है अब इन सारे एलिमेंट्स का क्या सीक्वेंस है प्री ऑर्डर में ये मुझे बताओ if the post order is this what is the sequence of all these elements in the pre order किस सीक्वेंस में है हाँ देखो 8 9 4 5 2 किस सीक्वेंस में लगे हैं यहाँ पे इन योर प्री ऑर्डर बताओ सामने तो दिख रहा है
8 9 4 5 2 प्री ऑर्डर में किस सीक्वेंस में है? इस सीक्वेंस में है ना 2 4 8 9 5 ऐसे लिखे हुए है ना 2 4 8 9 5 राइट. सेम लेट्स डू फॉर 6 7 3. 6 7 3 प्री ऑर्डर में सीक्वेंस में लिखे हुए हैं 3 6 7 3 6 7. नाउ यू सी अगेन आई हैव गॉट वन पोस्ट ऑर्डर, अगेन आई हैव गॉट वन प्री ऑर्डर. अब ये प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे इनमें, ये प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे इनमें, बिकॉज इसके लिए जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो रिकर्सिव प्रोग्राम होगा फिर से. सो फिर से सारी चीजें होंगी. ठीक है, अब ऊपर वाले दो को देखने की जरूरत नहीं, खाली इन दोनों को देखो. फर्स्ट लेट्स सी दीस टू. दिस इज माय पोस्ट ऑर्डर, दिस इज माय प्री ऑर्डर. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट नोड. रूट नोड क्या होगा इसके लिए? 2. 2 विल बी द रूट नोड. अब प्री ऑर्डर में देखो 2 के बगल में क्या आ रहा है? प्री ऑर्डर में देखो 2 के बगल में क्या आ रहा है? 4. 4 इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2. अब 4 को पोस्ट ऑर्डर में देखो 4 कहां आ रहा है? जो भी 4 के लेफ्ट में है इंक्लूडिंग 4 दैट विल बी द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 2. मतलब 8 9 4 यहां आएगा. जो भी 4 के राइट में आ रहा है दैट विल द राइट पार्ट ऑफ 2 दैट इज 5. 2 फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 लिख चुके हैं एक बार. एनी डाउट्स? फिर से देखो रूट लिखा 2, रूट के बगल में चाइल्ड आएगा लेफ्ट चाइल्ड दैट इज 4. अब उस लेफ्ट चाइल्ड को पोस्ट ऑर्डर में देखो कहां आ रहा है? उससे लेफ्ट जो भी होगा 8 9 इंक्लूडिंग दैट 4 दैट विल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द रूट. और जो भी राइट में होगा दैट विल द राइट पार्ट ऑफ द रूट. जो काम ऊपर किया था वो फिर से यहां पे किया. लेट्स सी दिस थिंग. इसका देखो पोस्ट ऑफ प्री. व्हाट इज द रूट नोड? 3. 3 के बगल में क्या आ रहा है? 6. 3 के बगल में 6 आ रहा है. 6 इज द लेफ्ट चाइल्ड राइट. अब ऊपर देखो 6 से लेफ्ट में जो भी होगा इंक्लूडिंग 6 वो 3 के लेफ्ट साइड में आएगा. कुछ नहीं है, मतलब 3 के लेफ्ट में खाली 6 आएगा, कुछ भी नहीं है. और इधर 6 के राइट में जो भी है दैट विल बी द राइट पार्ट ऑफ 3 दैट इज 7. ये वाला ट्री कंप्लीट हो गया इस डायरेक्शन. नाउ ये बच गया 8 9 4. अब इसको भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बट करेंगे नहीं. दिस इज पोस्ट. इसका प्री लिखो फिर से. व्हाट इज द प्री? 8 9 4 का प्री सीक्वेंस क्या है? 4 8 9. यहां से देख लो 4 8 9 4 8 9. फिर से सेम काम. व्हाट इज द रूट नोड? 4. 4 इज द रूट नोड राइट. 4 के लेफ्ट में देखो प्री में क्या आ रहा है? 8. 4 का लेफ्ट चाइल्ड है 8. अब उस 8 को पोस्ट ऑर्डर में देखो कहां आ रहा है? एवरीथिंग इंक्लूडिंग दैट 8 विल बी द लेफ्ट पार्ट ऑफ 4. मतलब खाली 8 क्योंकि 8 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 8 विल बी द राइट पार्ट ऑफ 4 जो कि है 9. द ट्री इज कंप्लीटेड. समझे? सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट नोड. फिर रूट नोड के बगल वाला लेफ्ट चाइल्ड देखना है. उस लेफ्ट चाइल्ड को पोस्ट ऑर्डर में देखना है. जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसके इंक्लूडिंग दैट चाइल्ड इटसेल्फ वो उस ट्री का लेफ्ट पार्ट होगा. जो भी उसके राइट हैंड साइड में होगा दैट विल बी द राइट पार्ट ऑफ द ट्री. दैट्स इट. कोई दिक्कत परेशानी किसी को? Watch the recording again. If you have any doubts, it will be clear. It's easy. This is not anything complicated. Fine. Now, if you see this tree, if you carefully see this tree, I have got the tree like this. 1, 2, 3. 2 के लेफ्ट में है 4, 2 के राइट में है 5, 3 के लेफ्ट में 6, 3 के राइट में 7, 4 के लेफ्ट में है 8, 4 के राइट में है 9. This is a full binary tree. Means either you will have 0 children or you will have 2 children हर नोड के. And this is a special property when you are creating a binary tree using post order and pre-order traversal. You will always get a full binary tree. इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा. इसके सिवा कुछ और मिल रहा है मतलब आपने गलत सॉल्व किया है. क्लियर? You'll always get a full binary tree. Any doubts? Okay. So with this, binary trees are finished. In our next class, we'll discuss
BST first, binary search tree, small topic, then ABL trees, again small topic, then B trees, again small topic. Okay, so first we will cover these, then searching, sorting, then hashing. Okay, your exam is not from 10th May, right? Your exam is not from 10th May. Your exam is from either May end or June first week. Okay. So in the next class we will discuss binary search trees. Very interesting topic. सारी interesting topic है इसके बाद कैसी trees create करने हैं वगैरह वगैरह वगैरह. Okay. So you can leave the session. We'll meet in the next class. Thank you.